अगेन इसमें मेरा कैपिटल था अबाउट 75 lakhs. Okay. So this is the net STCG figure. तो नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वैसे तो हम हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, सीखने सिखाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है जब हम आपके सामने रूबरू करते हैं रियल ट्रेडर्स को उनकी रियल अकाउंट्स के साथ। हाँ जी, आज भी हम एक ऐसे ही मास्टर ट्रेडर से बात करने वाले हैं जो कि आपको अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे एक इंपल्सिव ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बने, कैसे उन्होंने अपने माइंड को, अपने सिस्टम को तैयार किया, कैसे उन्होंने अपने लगातार लॉस होते हुए अकाउंट को प्रॉफिट में बदला, और साथ ही साथ वो आपको अपना प्रॉफिट फिगर भी दिखाएंगे, अपने अकाउंट्स को खोल के दिखाएंगे कि आपको विश्वास हो सके हमारी बातों पे। कोई समय वेस्ट करे, चलिए आइए मिलते हैं विट्ठल जी से और समझते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। So Vitthal, very welcome to Master Trader Speaks, and we are very happy to host you today. And so, how are you, and how do you feel now? Sir, very well, sir. Thank you very much. It is a great opportunity for me, and it is a matter of pride for me that I have been invited for this in this platform by you, sir. And really glad, sir. No, it's always a pleasure to host good traders, right? We also learn lot of things from our students, and this is the best thing, right? So. Yes. So let us start. How did what is your current profession? Where you are living right now? Where you are located? Sir, I am based in Calcutta itself, and Right. We are our family business. We are into petrol pumps. Okay. So my father was like, he's a seasoned investor. So he always taught me that say Vitthal, you spend 5 lakh rupees on yourself in a year, you spend extra 5 lakh and buy equity. Buy stocks of good companies. Right. So Okay. he is still holding shares of Colgate at face value. Oh, wow. So he always encouraged me to invest. When I started investing, I only made losses, sir. Right. It was only losses at first. Then बहुत पैसे दे के मैंने मार्केट में बहुत पैसे दे के I have learnt it, and Right. I was lucky enough to find the right mentor in you, sir, and it really helped me learning the right methods, and then I could get my groove and start being a profitable trader. Right. So what is your educational background? क्या मतलब कि tell me something about your educational background. Sir, I did my BCom honors from St. Xavier's College in Calcutta itself. Yes. My schooling was from the Heritage School. Okay. And I was pursuing CA, but inter clear करके I did not appear for my final. Okay. And Yes. So you look pretty young, yeah. What is your age? I am 31. If you don't mind, if you don't mind sharing it. Not at all, sir. I am 31. 31. Right. Right. So, I'm a father of 2. I have 2 children also. That's great. Right. The सबसे अच्छी बात आपके ये फैमिली में ये है कि आपके फैमिली में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ट्रेडिंग को लेके या इक्विटी को लेके. In fact, I was encouraged from a very young age. Right. So this is the thing that everybody should learn. Right. जितने भी फादर्स जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, कम से कम उनको ये सीखने का है कि एनकरेज करो सीखने को, इन्वेस्टिंग को. और जैसे कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंडियन के मार्केट के इकोनॉमी में आने वाला है, इक्विटी स्ट्रक्चर में आने वाला है, तो अभी भी लेट नहीं है. राइट. एवरी फादर शुड एनकरेज देयर सन्स टू. Sir, I was very lucky in that respect that my father encouraged me from a very young age. Even when I lost a lot of money in the stock market, he was not harsh on me. He said कि हाँ ठीक है, चलो सीखो. It is treat this as cheap tuition fee. That's what. Yeah, learning cost. Yes. So नहीं, my father still resist me. Right. अभी भी मेरे को बोलते हैं कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. Right. जो come and join my business. Yeah, I can pay you more than you are earning. But again, the thing is that passion drives us. Right. Money doesn't drive us. So this is the thing. That's why I am here. So the thing is this. What was your previous experience with equity now before joining the program? How you were approaching the market, whether you were using technical analysis, fundamental analysis, कोई calls लेते थे, किसी की research लेते थे, तो how did you approach before trading by yourself, और क्या experience था?
सर बेसिकली आई वॉज मोर ऑफ एन इम्पल्सिव ट्रेडर. जो जब समझ आता था आई डिड नॉट हैव एनी क्लू अबाउट टेक्निकल एनालिसिस और एनीथिंग. थोड़ा बहुत जो समझ में आता था, मोर ऑफ एन इम्पल्सिव ट्रेडर. जब जो मन आया खरीद लिया, जब जैसे मन आया बेच दिया. उस समय मैं एफओ भी काफी कर लेता था. जब शुरू में all traders find FNO is like easy money, and we get sort of sucked into the game ki bhai do FNO, it is make a quick buck. And so I also started FNO. उसमें भी काफी मैंने पैसे दिए मार्केट में. Gradually then I learned. I was lucky to have friends who are full time into markets. They guided me. उनसे I got to know about you. I started following you on Twitter. Then basically the start of technical analysis was from your Chart Kya Bolta hai episode on YouTube. Okay. So I've not missed a single episode of yours, sir. That's great. Yeah, thank you for watching it. Yeah, so I was very intrigued. आपने जब मैंने चालू किया था आपके YouTube चैनल को फॉलो करना, तो आपने एक क्रूड ऑयल का कॉल दिया था 3200 में. So I was absolutely shocked कि how can a person, say give a buy call or for 3200, call the exact target और वो target achieve हो जा रहा है. I was absolutely fascinated कि how are things working. I have been doing something wrong. I need to find the right way. Finally, I took a call. I joined your course, and then I started to learn technical analysis. My friends also did a lot of hand holding. उन्होंने भी बहुत support किया, मुझे काफी सिखाया. सीखते फिर I could, after I learned technical analysis, it was like a whole new world to me. Right. And I know that you are a wonderful trader, right? वो आपके रिटर्न तो पता चलता है. और अभी आपको पता चल गया होगा कि 3200 पे क्रूड कैसे आ गया, राइट? कैसे आ गया, बिल्कुल सर. ओके. सो एक चीज आप बताइए, देखिए मार्केट तो हमेशा चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहता है, राइट? तो क्या टेक्निकल, जैसे आपने पहले फंडामेंटल फॉलो किया था कि सीधा आपने टेक्निकल शुरू कर दिया, या कि कैसे, मतलब कि प्रीवियसली टेक्निकल्स का तो कोई आइडिया ही नहीं था. आई डिड नॉट नो दैट there is something like technical analysis जो exist करता. I did not have any idea about technical analysis. I was more into fundamental analysis. फिर भी I could fathom, थोड़ा बहुत समझ में आता था because I was from finance only. तो मैंने CA का भी इंटर किया था, तो I was कि भाई थोड़ा बहुत बैलेंस शीट सब समझ में आ रहा है. Fundamental analysis was only what I understood back then. Right. So जैसे कि हमारे गुरु है ना एंड्रू कार्डवेल, वो बोलते हैं ट्रेडिंग 3 तरह से होती है. एक फंडामेंटल एनालिसिस से होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस से होती है, और एक गट फीलिंग से होती है, राइट? गट मतलब कि पेट में जो कभी गुदगुदी हुई, ये ले लो वो ले लो. बिल्कुल सर. सो आई वाज मोर ऑफ द थर्ड कैटेगरी ट्रेडर बैक देन. राइट. ओके. तो आपके पास कोई मेथड नहीं था, यू वर ट्रेडिंग आउट ऑफ ब्लू, जो समझ में आया कभी भी आया वो ले लिया. आज किसी ने कुछ बोल दिया ये खरीद लो, ये चलेगा, तो मैंने वो ले लिया. फिर तो टेक्निकल एनालिसिस ने आपको कैसे हेल्प किया अपने ट्रेड्स को स्ट्रक्चर करने में वगैरह? टेक्निकल एनालिसिस ने तो पूरा चेंज कर दिया सर. माइंडसेट ही चेंज कर दिया. बेसिकली इट वाज लाइक आई वाज अ हैंडीकैप्ड ट्रेडर बिफोर I knew technical analysis. Now I feel the position is in my control. I do not get uneasy with my positions. I know when I take a trade, I know what is my stop loss. So I am prepared for my stop loss to hit. So there is no anxiety in that respect. And risk management भी थोड़ा मैंने देखा, उसमें भी मैंने work किया. I tried to refine my entries and exits. Right. So it was pre-trade planning that helped me a lot. And charts देख के I could find कि भाई up trend है, down trend है, कब खरीदना है, नहीं खरीदना है, support, resistance, ये सब नए concepts पूरे आ गए. And it helped me broaden my horizon altogether. Okay. So tell me one thing कि कितना effort डालना पड़ा आपको सीखने के लिए? Sir, effort तो ऐसा है सर, it is like Bible to me. Your words are like etched in my memory. 500 charts a day. Right. That is what I work. So earlier I used to take about 3 hours to scan 500 charts.
So my family used to get annoyed with me कि ये क्या कर रहा है सारे दिन कंप्यूटर में बैठ के, what is he doing? किसी को समझ में नहीं आता था. मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ तो मैं चार्ट्स देख रहा हूँ. My father used to tell me, what are you doing in the office? Right. But then now I take about 1 hour to scan through 500 charts. Right. That is what has helped me a lot, sir. So the thing is, this effort has to be put in, right? बिना effort के कुछ नहीं है. 100%. Yeah, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि yes, लोग सोचते हैं कि कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, कोई वर्कशॉप कर लिया, तो कोई जादू की झप्पी मिल जाएगी या कोई कैप्सूल मिल जाएगा, उसको ले लो, काम शुरू हो जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. आप कुछ भी करो, उसमें एफर्ट डालना पड़ता है. जैसे आप बोलते हैं 500 चार्ट इज एन एफर्ट, नो टाइम टेकिंग एफर्ट वाला काम है कि रोज 500 चार्ट देखना. ओके, सो देखिए, एफर्ट डालना पड़ता है, और अगर आप एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट आपके सामने. अभी हम रिजल्ट देखेंगे, विठल जी के अभी रिजल्ट भी देखेंगे, तो हमारे ऑडियंस काफी उत्सुक हो जाती है रिजल्ट देखने के लिए. तो अभी देखेंगे, पहले कुछ बातें कर लेते हैं. तो ये बताइए कि ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपका स्क्रीन टाइम कितना होता है? हाउ मच इज योर स्क्रीन टाइम, राइट? ट्रेडिंग के दौरान पूरे दिन स्क्रीन पे चिपक के बैठे रहते हैं, हर एक पल हर एक टिक को देखते रहते हैं. ट्रेडिंग मतलब कि आप ऑफ द मार्केट कितना टाइम ऑन एफर्ट जाता है, ड्यूरिंग द मार्केट कितना टाइम एफर्ट जाता है? सर ड्यूरिंग द टाइम भी मैं मतलब आई एम इन द स्क्रीन. मैं पूरा टाइम नहीं बैठता हूँ, मतलब पूरा टाइम मैं मार्केट्स नहीं देखता हूँ. बट यस, आई हैव अ हैबिट ऑफ स्कैनिंग द मार्केट एटलीस्ट थ्राइस ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स. और वीकली इज समथिंग विच आई डोंट मिस. सो सपोज फ्राइडे है तो फ्राइडे को अबाउट 1:30 I start to scan all the charts in my watch list, and वो सारे charts में एकदम अच्छे से weekly time frame में देखता हूँ क्या कैंडल बनने जा रहा है, अगले 2 घंटे में वो कैंडल कंक्लूड हो जाएगा. So that is something which I don't miss. और नहीं तो अगर मैं मार्केट में उतना नहीं एक्टिव हो पाया तो I make it a point कि भाई before I sleep I scan through those charts. Right. तो ऑफ मार्केट अपना काम ज्यादा होता है, इन द मार्केट अपना काम कम होता है. हाँ सर, इन द मार्केट भी होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है ऑल टुगेदर, बट हाँ ज्यादा ऑफ मार्केट ही होता है डेफिनेटली. तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ मार्केट, और सिर्फ जो काम बटन टीप के ट्रेड लेना है वो इन द मार्केट. यस सर, सो बेसिकली बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स माय वॉच लिस्ट इज रेडी. आई नो दीज आर द स्टॉक्स व्हिच आई हैव टू सी, तो उसको मैं एक अलग वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ. एंड आई स्कैन दोस चार्ट्स. वो जब भी मेरे लेवल्स आते हैं मैं अलर्ट लगा के रखता हूँ, तो फिर वो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ अकॉर्डिंगली. एकदम बढ़िया. और इसी तरह से ट्रेड होना चाहिए. पूरे दिन मार्केट में बैठ के, स्क्रीन के सामने बैठ के हम लोग प्राइस एक्शन को चेंज नहीं कर सकते, राइट? वो गिर रहा है तब भी वो गिरेगा, आप बैठोगे तब भी वो गिरेगा, आप नहीं बैठोगे तब भी वो गिरेगा. तो स्टॉप लॉस आपका, अगर आप बैठोगे तब भी लगेगा, नहीं बैठोगे तब भी लगेगा. तो बैठ के बिना मतलब अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डालना? अच्छा, डेरिवेटिव्स के बारे में बताइए. बहुत बड़ा मिथ है, लोग डेरिवेटिव्स के पीछे पागल है, राइट? मैं ऑप्शन सेलर्स की भीड़ देख चुका हूँ. लोग कहते हैं ऑप्शन बेच के पैसा, लोग करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं डेरिवेटिव्स के पीछे, जिनके पास छोटा कैपिटल भी होता है ना. अभी मैं ये देखता हूँ 2 लाख 3 लाख के कैपिटल के साथ भी लोग डेरिवेटिव में. तो आपका एक्सपीरियंस डेरिवेटिव्स के साथ क्या रहा है? सर टिल डेट मैं तो नहीं बोलूंगा कि मैं डेरिवेटिव्स में प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहा हूँ. सो इट इज लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम. जो कर सकते हैं वो करते होंगे, बट इट इज नॉट इन माय टेम्परामेंट टू एक्सेल इन दैट. सो if I see my PL today कि मैं डेरिवेटिव्स में क्या कमाया हूँ और इक्विटीज में क्या कमाया हूँ, तो पिछले 1 साल में हालांकि मैं डेरिवेटिव्स में भी ग्रीन में ही हूँ, बट द प्रॉफिट इन इक्विटी इज मच मोर देन इन डेरिवेटिव्स. तो जैसे ही मैंने आपका आई स्टार्टेड डूइंग योर प्रोग्राम, आई सेड कि व्हाई डू आई नीड टू डू डेरिवेटिव्स एट ऑल. मेरा धीरे धीरे डेरिवेटिव्स बंद होते गया एंड आई यूज्ड टू टेक पोजीशन इन इक्विटीज ओनली, इन कैश ओनली. So I have not been able to understand the derivatives very nicely. I cannot. My temperament is not such that I can excel in that game. Right. So I prefer to limit my exposure when it comes to derivatives. Okay. So जैसे कि अपने प्रोग्राम में बहुत चीज हम डिस्कस करते हैं, राइट? प्राइस पे भी डिस्कस करते हैं, मूविंग एवरेज पे, RSI पे. सब लोग मुझे RSI की वजह से ही जानते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. बाकी चीजों के Yes. Your RSI module is
it's like an eye opener, sir. It's like seventh wonder. It is so comprehensive. It completely changed the way I look at charts, and it was really helpful for me, sir. Right. So आप बताओ कि आपको हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आप कैसे मदद की, मतलब कि और आपका बेस्ट क्या टूल आपको लगता है बेस्ट वो पूरे प्रोग्राम में? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई टूल मुझे बताओ, या कुछ एक सिस्टम जो आपने अपने आप डेवलप किया मास्टर ट्रेडर को डिराइव, उससे कुछ सीखा, तो क्या पहले ये बताओ कि मास्टर ट्रेडर आपको किस तरह से आपकी मदद करता है, क्यों, और फिर मास्टर ट्रेडर में क्या सबसे अच्छा लगता है? सर बेसिकली मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ने टेक्निकल्स, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बोला, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ABC अबाउट टेक्निकल्स, सो आई गॉट अ गुड ग्रास्प अबाउट टेक्निकल्स. आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड क्या सपोर्ट्स होते हैं, क्या रेजिस्टेंस होते हैं, क्या ब्रेकआउट होता है, क्या नहीं होता है. प्लस फिर क्या है, एक एक पैटर्न को मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया, और उसी पैटर्न को मैंने ऐसा कर लिया कि the moment I see the chart, I recognize this pattern कि भाई this is my forte, here I have to trade. So जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया आपके प्रोग्राम में, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, वो है सर डेफिनेटली RSI ओनली, वेयर आई सॉ कि RSI कहाँ 60 पे बाउंस खा रहा है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो होता है कि से आवरली पे हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, और साथ साथ में डेली पे भी एक कोई NR फेल हो रहा है या PR बन रहा है, तो ऑल दिस हेल्प मी अ लॉट. दिस इज द मेन थिंग. उसी पैटर्न को मैंने बार बार प्रैक्टिस किया, और उसी से काफी इंप्रूवमेंट हुआ सर मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में. ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख रहे हैं कि बाकी पहले भी हम लोगों ने अपने बहुत सारे ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए. आप सब में एक चीज कॉमन जरूर देखो कि दे आर स्टिकिंग टू वन थिंग, राइट? वो एक टूल पे स्टिक कर रहे हैं, एक पैटर्न पे स्टिक कर रहे हैं. और आप ये हमारे ट्रेडर्स हैं, और आप इनको छोड़ के वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि उन लोगों ने एक ही चीज को पकड़ के रखा, और उसी को उन्होंने बार बार रिपीट किया, बार बार प्रैक्टिस किया. तो वो एक्सेल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है. हम लोग स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, वो भी सीख ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो और उसी को रिफाइन करते रहो. दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? तो हमारी मास्टर ट्रेडर कम्युनिटी के बारे में बताइए. जो हमारा कम्युनिटी है मास्टर ट्रेडर का, हमारे इतने सारे ट्रेडर्स हैं, उस कम्युनिटी के बारे में कमेंट करिए. मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि सर आप सब बात कर लेते, कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते. कम्युनिटी के बारे में बताइए. आई एम रियली लकी टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सर. इट इज लाइक इतना शेयरिंग हो जाता है ग्रुप में. सो सपोज आई सी अ ब्रेकआउट, तो रियल टाइम बेसिस पे मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ. Like me, there are so many other traders who are also posting their analysis, and their analysis at times it is superb analysis. तो क्या है, उनका analysis भी हमारे काम आ जाता है, हमारा analysis भी. So it is like a community sharing where we share हमारे setups को share करते हैं, knowledge को share करते हैं. किसी को कोई doubt होता है तो we can get our doubts clarified in the group. So it is really great to be part of this community, sir. And एक और चीज सर मैं बोलना चाहूँगा that basically जो एक mental framework होता है trading में, the mental framework that is required, that is also very important. Suppose you are able to catch the right trades also, but आप uncomfortable हो जा रहे हो, आप अपने trades को रख नहीं पा रहे हो, तो वो भी मुझे ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बहुत हेल्प हुआ कि आई यूज्ड टू थिंक कि चलो मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, सो देन व्हाई डू आई नीड टू वरी. ज्यादा से ज्यादा हिट होगा स्टॉप लॉस, मैं पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. सो बेसिकली व्हेन आई एम ट्रेडिंग आई एम वेरी कंफर्टेबल, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट आई हैव बीन एबल टू डेवलप थ्रू योर कोर्स सर. राइट. और बेसिकली कम्युनिटी, मेरे कम्युनिटी के बारे में सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है कि मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को बहुत सीखना पड़ता है, राइट? कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे करें, उसके बारे में मेरे को रिसर्च करना पड़ता है, मेरे को सीखना पड़ता है. और सबसे अच्छी बात ये कि कभी कभी गलत ट्रेड मैं खुद लेने जाता हूँ. ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कोई ट्रेड लेने जा रहा हूँ और मैंने पोस्ट किया कि ये मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ या ये ट्रेड, तो वो वहां से एनालिसिस आ जाती है कि ये तो रेजिस्टेंस पे है,
या ये तो ऐसा हो रहा है, तो फिर वो मेरे मिस आउट हो गया, यार मैं तो ये मिस आउट कर गया। तो ये कम्युनिटी से मेरा भी फायदा बहुत होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा फायदा मेरे को यही लगता है कि जब वो काउंटर एनालिसिस आती है ना कि सर आपने ये देखा, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द कम्युनिटी दैट आई फील। Many a times, sir, where I have posted my analysis and I was almost about to take position, and someone in the group writes, "Oh, this is so far away from the moving average." So I said, "Yes, this is something which I did not take cognizance of." So it does really help a lot. Okay, तो सर बात बहुत हो गई, अब मतलब कि अब दिखाने का टाइम है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। So this is one of the accounts. इसमें this is the net profit figure for the current financial year. इसमें my capital is very less. इसमें I'm trading with a capital of about 25 lakhs. Okay. And this is my other account. This I started again. इसमें मेरा capital था about 75 lakhs. Okay. So this is the net STCG figure. All right. This is my third account. इसमें मेरा capital भी about 70 lakhs का है सर. I started with 70 lakhs. Right. And again, this is my STCG figure for this file. Right. So absolutely amazing, right? You are doing a very amazing job. और ये भी है, देखिए losses. Now tell me, how important is it to take the losses? Sir, I think it is very, very important to take the losses. Ever since I have joined the program, पहले यही हुआ. First, my losses came to a halt because I was cutting my losses very early. I was taking my stop losses. पहले क्या था, जब मैंने मार्केट में घुसा था तो ऐसा टेम्परामेंट था कि भाई नुकसान नहीं बुक करना है, तो नुकसान को हम लोग बहुत लंबा देख लेते हैं और प्रॉफिट को हम उतना लंबा नहीं देख पाते. So after the program, this is also one change that came into me, that I let my winning positions continue, and I used to I try to cut my losses within 10%, sir. Right. That is very good. See, ये है कि जो भी है losses जो होते हैं, we try to not to run our losses. हम लोग अपने losses को double digit में run नहीं करने देते हैं. और जितने भी audience ये सुन रहे हैं, आप ये जाके math करो कि अगर आप अपने लॉसेस, जितने भी आपके लॉस हुए हैं ना, पिछले जितने भी लॉस हुए हैं, अगर आप उन लॉस को सिंगल डिजिट में रख लेते, राइट, ये अगर आप उस लॉस को सिंगल डिजिट में रख लेते, 9% रख लेते, तो उसको कंपेयर करिएगा कि कितना फर्क आ जाता. एंड अगर जो हमारे मेंटीज हैं वो भी अगर सुन रहे हैं, तो डू दिस एक्सरसाइज, राइट. आपके जितने साल भर में लॉस हुए हैं, जो आपने 10% से ज्यादा लिया है, अगर आपने उसको 10% के अंदर काट लिया होता, तो आपके अकाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आता, ये आप खुद देखोगे. दिस इज द एक्सरसाइज दैट आई वांट एवरीबॉडी टू डू. जो हमारे YouTube पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स, प्लीज ये एक्सरसाइज जरूर करिए, बहुत बड़ा आई ओपनर है, राइट. तो विट्ठल, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. हम लोगों ने बहुत सारी बातें की एंड आपके अकाउंट्स भी देखे, एब्सोल्युटली वंडरफुल रिटर्न्स. यू हैव बीन डूइंग अ वेरी फैबुलस जॉब, राइट. सो एनी लास्ट वर्ड बिफोर वी रैप अप? सर, लास्ट वर्ड यही है सर, दैट जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं सीख रहे हैं अभी, दे आर वेटिंग, उनके लिए, सबके लिए बोलिए. So sir, trading is also more of a mental game. So we have to be, I'll only say this, you have to be very, very comfortable while trading. मैं ये एक एक्सरसाइज आप करें, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ था, that I used to write down my stop loss and my target before taking any trade. So before taking any trade, I know that this is the amount of money I can lose in this particular trade. So that helps me get around. It does not make me uncomfortable anymore. वो आप लॉस से पहले कंफर्टेबल हो जाते कि यस, इस लॉस की ट्रेड में मेरे को 20,000 लॉस होगा, यस आई एम रेडी टू टेक दैट 20,000, राइट. तो दिस इज द बिग थिंग. ये मेंटल एज,
और देखिए वो मेंटल ट्रेनिंग जो बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग कुछ नहीं है, सब ढकोसलेबाजी है। यही सब होता है मेंटल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, राइट? बाकी लोग लाखों लाख रुपए खर्चे कर देते हैं मेंटल ट्रेनिंग में, और वो छत पे जाके मेडिटेशन कराते हैं, ये सब बकवास चीजें हैं। And also, one more important thing is, do spend on educating yourself. It is the biggest asset that you can develop. You must मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए to spend money for training, because you are honing your skills, you are developing your skills. So you should not shy away from taking the right training. This is also a big takeaway that I have learned in the past 2 years. यस, वो देखिए वो आजीवन विद्यार्थी, ये दिस इज द टैग लाइन, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि आजीवन विद्यार्थी रहो। यू कैन नेवर बी, यू शुडंट बी अ मास्टर, यू शुड बी अ लर्नर एवरी टाइम, always. राइट? So Vittal, it was very nice talking to you, very enlightening session, right? आपने जिस हिसाब से ट्रेडिंग की, इट्स वेरी एनकरेजिंग, एंड आई थिंक हमारे मेंबर्स को भी एनकरेज करेगा ये चीज। और अभी आपने ये जो हमें इंटरव्यू दिए, आप सारे मेंबर्स आपको बक करने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, राइट? It will be my pleasure always, sir. Right. I really enjoy being part of the community. Okay. So it was great talking to you, Vittal. Thank you again for taking time and coming to this platform to enlighten everyone. Thank you very much, sir. Thank you very much.